આપણી વચ્ચે સંત શિરોમણી સ્વામી શ્રી જ્ઞાનાનંદ સ્વામી મહામંડલેશ્વર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે ત્યારે સૌ પ્રથમ આપણે સૌ એમને આ સંસ્થા પરિવારથી તાળીઓથી જ્યારે સંત શિરોમણી પધાર્યા છે ત્યારે એમનું સ્વાગત ગીત દ્વારા પણ વિદ્યાર્થીઓને કહીશ કે સ્વામી શ્રી સ્વાગત ગીતથી સ્વાગત કર્યું. સ્વાગતમ અમારું સ્વાગતમ
મહામંડલેશ્વર આંતરરાષ્ટ્રીય સંત છે। તેમણે મોરિશિયસ, લંડન, ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશોની અંદર ગીતા મહોત્સવ ઉપર ઘણા આયોજન કરેલા છે। તેઓ અંબાલા હરિયાણાના વતની છે અને અંબાલા મધ્યે તેમણે રાજનીતિક વિજ્ઞાન ઉપર સ્નાતક અને માસ્ટર ડિગ્રીનો અભ્યાસ કરેલો છે। ધ્યાન, પ્રાર્થના અને ગીતાજી ઉપર એમનું વર્ચસ્વ છે। ગીતાજીના આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે 18 અધ્યાય અને 700 શ્લોકો કે જે આપણા જીવનની દરેક સમસ્યાઓનું જે સમાધાન છે એ ગીતાજી ઉપર એમણે સમગ્ર ભારત દેશ નહીં પણ દેશ વિદેશની અંદર આખું આયોજન એમણે મહોત્સવો કર્યા છે અને એના વિશે દરેકને જાગૃત કર્યા છે। અને એમનો એક સારો મંત્ર છે કે જીવો ગીતા કે સંગ सीखो जीने का। जिंदगी તમે ગીતાજીની સાથે જીવો અને એમાં મળી જાઓ તો તમારું સાચું જીવન એ યથાર્થ છે। આવી વાત સાથે એ અલગ અલગ જગ્યાઓ ઉપર જઈ અને ગીતાજીનો સંદેશ આપે છે। તો એવા સંત શિરોમણી જ્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે ત્યારે હું વિનંતી કરીશ શ્રી કચેરીયા બેન એજ્યુકેશન એન્ડ મેડિકલ ટ્રસ્ટના ઉપપ્રમુખ આદરણીય શ્રી કિશોર સાહેબ અને વસંત સાહેબને કે આપણી વચ્ચે સંત પધાર્યા છે ત્યારે હું પુષ્પગુચ્છ સારું અને સારું ગાડીને એનું બહુમાન કરશે અને પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરશે। આપણે સંત શિરોમણી जोरदार तालियों હવે સંસ્થે વિનંતી કરી છે આપ આગામી અને આજના કાર્યક્રમને એ પ્રકાર દ્વારા આપણે બોલાવીએ। આપણે સૌ ને કાર્ય વધાવીએ। સ્વામીજી અને આચાર્ય શ્રી કિશોર સાહેબ, વસંત સાહેબ તો આગળ આવી અને આજના આ કાર્યક્રમને આપણે દીપ પ્રગટ્ય દ્વારા
એ શ્લોકનું અહીંયા પઠન કરે. આપણે સૌ વિદ્યાર્થીને કાળજી ગુજારે. સૌને મારા ભાવ ભર્યા જે બોલવાનું છે જે સરળ જે પહેલા ધર્મને એ વાત કહેવા માંગુ છું કે મેં ચોથા ધોરણમાં હતો ત્યારે આ ગીતા શીખવાનું ચાલુ કર્યું. આ પ્રેરણા મને પરમ પૂજ્ય પાંડુરંગ સાથે આપણને જે વારસા સાથે સંપૂર્ણપણે શીખી દીધું. તો આજે હું તમને એ ગીતાનો એક નાનકડો એવો 15 અધ્યાય મારી સમક્ષ રજૂ કરું છું. 15મો અધ્યાય પુરુષોત્તમ શ્રી ભગવાન વાક્ય ઉદ્ગમૂલમદ સાકમ સદસંપ્રાહુરસ્ય યશ વર્ણાની રથમ વેદ સવેદ પદશદરો રસદસદાકા મનુષ્ય રોગે રૂપમસ્ય તથો પરપદે નાતો ચારિત્ર સંપ્રદેશ અસ્વથમેનમ વિરુદ્ધમૂલમ સંતસત્વેન પ્રવેણ ચિત્વા તદપરમ તત્ત્વૈવાતિતવ્યમ યસ્મિન્તારનિવતતિ ભૂય ત્વમેવ ચાર્યં પુરુષં પ્રપદે યદ પ્રવૃત્તિ કૃષ્ણા પુરાણી. આપણે વિદ્યાર્થીઓ આજે આપણે મુખ્ય કાર્યક્રમ છે આપણે ગુરુજીને સાંભળવાના. તો એ તો આપણો બધા તમામ શાસ્ત્રો ગ્રંથસ્થ છે જે અત્યારે આપણે સાંભળવા જઈએ તો સમય લાગે. આજે આપણે જે સંત પધારે છે ત્યારે એક વસ્તુ આપણે કાર્યક્રમની અંદર વધે એ છે કે આજે આપણી શાળાની શરૂઆત થઈ. આજે વેકેશન પૂર્ણ થયું અને એની સાથે સાથે એક આપણી શાળામાં નવી ઘટના બની કે આપણી શાળાના આચાર્ય તરીકે આદરણીય શ્રી કોમનવેલ્થ નવા નિયુક્ત થયા છે. જે આજે આપણે વચ્ચે સંત પધાર્યા છે ત્યારે હું સંત જ્ઞાનાનંદજી મહારાજને વિનંતી કરીશ કે આપ સાર્વજનિક સન્માન કરો. આદરણીય શ્રી વસંત સાહેબ અને કિશોર સાહેબને પણ વિનંતી કરીશ કે આપના આગળ બેનને આવનારા વર્ષ માટે પુષ્પવૃત્તિ શુભેચ્છા પાઠવો અને આપણું આ જે સુકાન છે એ સુકાન સુખે વ્યવસ્થિત રીતે ચાલે એવા સંત શ્રી કહીશ કે બેનને આશીર્વાદ આપો. આપણે જોરદાર તાળીઓથી આ ઘટનાને વધારીએ. આજે આપણે જણા માટે એકત્રિત થયા છીએ એ સ્વામી જ્ઞાનાનંદજી મહારાજને આપણે સાંભળવાના છે, એમાં આશીર્વાદ લેવાના છે. ત્યારે વિનંતી કરી સ્વામીશ્રીને કે સંતશ્રી આપ હવે આગળનો કાર્યક્રમ આગળ વધારો અને વધારે સૌ વિદ્યાર્થીઓને અને સ્ટાફ મિત્રોને આ વર્ષની શરૂઆતમાં જ પહેલા જ દિવસે આપ આશીર્વાદ પાઠવો. तेजस्विनावनीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति शांति शांति. वंदे भारतनाट्यम वंदे ओंकारवंदना. इससे पहले कि हम आपसे भी बात करें,
सभी बच्चे बिल्कुल सीधा बैठे हैं और सामने देखें। जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं आपस में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल सामने देखेंगे। अच्छा ये बताओ, आप यहाँ कुछ सुनने के लिए बैठे हैं या बोलने के लिए? कौन कौन बच्चे यहाँ आपस में बोलने के लिए बैठे हैं? कौन कौन बच्चे सुनने के लिए बैठे हैं? ठीक है, अभी क्या करें, हाथ नीचे करें। तो सभी देखो, दो काम एक साथ नहीं होते, या सुनने का काम होगा या बोलने का होगा। तो दोनों में से क्या काम करना है आपने? सुनने का। और अगर बोलेंगे तो देखो, यहाँ से जो बिल्कुल लास्ट लाइन है वो बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। जो बच्चे आपस में बात करेंगे सब बोले एक्टिव। ये 3 ए हैं, एक्टिव, अलर्ट, अवेयर। क्या क्या है? ऐसे नहीं होता एक्टिव, अलर्ट, अवेयर। ऐसे होता है एक्टिव? ठीक से बोलो, एक्टिव, अलर्ट, अवेयर। ऐसे बोलो। ये 3 ए जो है, फिजिकली हमें कैसे बैठना है? एक्टिव होकर के। कैसे बैठना है? एक्टिव होकर। मेंटली हमें अलर्ट रहना है। मेंटली क्या रहना है? अलर्ट। और इंटेलेक्चुअली क्या होना है? थर्ड ए, अवेयर। इंटेलेक्चुअली क्या होना है? फिजिकली एक्टिव। फिर एक बार बोलो, फिजिकली, मेंटली अलर्ट और इंटेलेक्चुअली अवेयर। अब हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए गीता के अनुसार। ये भगवत गीता जो अभी एक स्टूडेंट ने 15वां अध्याय जो 15th चैप्टर जो है, बच्चे ने बड़े अच्छे ढंग से रिसाइट किए, उच्चारण किए। भगवत गीता जो है उसमें कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? कुल मिला के 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? 18। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और भगवत गीता में मेनली मुख्यतः 3 योग हैं। कितने योग हैं? कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कौन कौन से 3 योग हैं? ज्ञान योग। ये जो 3 ये आपको बताई गई। पीछे वाले बच्चे जो हैं, पीछे के जो बच्चे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, फिर उन बच्चों को आगे बुलाएंगे। जो बच्चे बात कर रहे होंगे ना, अरे आप लोगों को कुछ नहीं करना, टीचर को कुछ नहीं करना, वो इस समय हमें क्लास लेनी है। आप आराम से बैठ जाओ, हम देखते रहेंगे। तो सामने देखे, पीछे घूमते रहे। 3 ये जो आपको कही गई, कौन कौन सी ये है? 3 एक्टिव, अलर्ट, अवेयर। ये गीता के 3 योग हैं। गीता का जो कर्म योग है वो हमें फिजिकली एक्टिव होकर रहना सिखाता है। गीता का कर्म योग फिजिकली हमें एक्टिव होकर रहना सिखाता है। गीता का भक्ति योग जो है वो हमें मेंटली अलर्ट होकर रहना सिखाता है।
और मेंटली स्ट्रांग होके रहना भी सिखाता है। जो बच्चे मेंटली अलर्ट होते हैं ना, वही मेंटली स्ट्रांग भी होते हैं। उन्हीं बच्चों की कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, मेमोरी और विल पावर बहुत अच्छी बनती है। देखो फिजिकली हम एक विषय लेंगे, थोड़ा 15-20 मिनट में पूरी बात करेंगे। और इंटेलेक्चुअली गीता का तीसरा योग है ज्ञान योग। वो इंटेलेक्चुअली अवेयरनेस बताता है, अवेयर होकर रहना सिखाता है। और एक्टिव होना क्या है, कर्म योग क्या है गीता का? एक्टिव होकर रहना ये है कि जो जिस समय की ड्यूटी है उसे उस समय अच्छे ढंग से करो। ये गीता का योगा कर्मसु कौशलम है। वर्क एफिशिएंसी इज कॉल्ड योग। वर्क एफिशिएंसी क्या होती है? इस समय जैसे आपकी ड्यूटी क्या है? फर्स्ट ड्यूटी क्या है आपकी? अच्छी पढ़ाई करना। क्या ड्यूटी है आपकी? अच्छी पढ़ाई करना। तो पढ़ाई में आप एक्टिव होके रहे, ये आपकी ड्यूटी है। गीता का कर्मयोग ये सिखाता है कि हम कैसे अच्छी पढ़ाई कर पाए, कैसे अपनी पढ़ाई में एक्टिव रहें। पढ़ाई के समय केवल हमारी एकाग्रता पढ़ाई में ही रहे। क्या होता है? कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। कैसे नहीं बनती कंसंट्रेशन? जब या तो हमारा ध्यान कहीं मोबाइल की ओर अधिक हो जाता है, या कहीं कोई ऐसी कंपनी सोसाइटी जो हमें पढ़ाई से दूर कर देती है, उससे हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है। तो जब तक कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, तो भगवान कृष्ण ने गीता में पूरा उपदेश देने के बाद अर्जुन से पूछा कि बात क्या जो मैंने सुनाया क्या तुम्हें ध्यान से सुना हो? वहां शब्द आता है कहीं एकाग्रन चेतसा। क्या तुम्हें एकाग्र होकर के सुना? एकाग्रता क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है? इसको आप सभी ध्यान से सुनिए। सीधा बैठे सभी ध्यान इधर रखें। कंसंट्रेशन क्या होती है? जिस समय टीचर आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में, या आप घर में बुक लेके पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं बैठे, ऐसे होता है ना, जब बड़े डिजेक्शन में उदास तो नहीं है ना, नहीं फिर प्रसन्न होकर बैठे, एक्टिव ऐसे बैठना है, एक्टिव। तो आज तक कॉन्सेंट्रेशन में बहुत काम आएगी ये बात आपके। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? जब टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या आपका ध्यान जो टीचर पढ़ा रहे हैं वहां है, या आप कहीं कुछ और सोच रहे हैं? जैसे यहां आपको कुछ बातें अच्छे जीवन के लिए कही जा रही है, अच्छी पढ़ाई की और अच्छे जीवन के लिए भी। मान लो आप बातों में लग गए, या आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो होगा क्या? यहाँ की कई बात आप सुन नहीं पाओगे। बात समझाइए नहीं? कभी कभी ऐसा होता है, ये पार्ट ऑफ साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान का एक भाग है, एक चैप्टर भी है मनोविज्ञान का। जैसे आप आपस में दो बच्चे बात कर रहे हैं, बात करते करते आपका ध्यान कहीं और चला गया। थोड़ी देर में आप दूसरे बच्चे को कहोगे
कि क्या कहा तुम्हें, और कोई यदि पूछे कि तू कहाँ था, तो आप कहोगे कि मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। हो जाता है या नहीं होता है? ऐसा हो जाता है ना, ऐसे ही होता है। मान लो पढ़ाई आप करते करते आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो आप जो पढ़ रहे हैं वो उसको आप लर्न कर ही नहीं पाओगे, ग्रास्प नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि माइंड जब साफ होता है, माइंड साफ होता है, तो ही बात को कैच किया जाता है, ग्रास्प किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो कंसंट्रेशन वो होती है कि जब पढ़ रहे हैं तो पूरा ध्यान कहीं हो, जब सुन रहे हैं तो पूरा ध्यान नहीं हो। जिन बच्चों की कंसंट्रेशन अच्छी होती है, लक्ष्य पे होती है, जैसे आप जानते हैं ना, जब कौरव और पांडव मुख्य मुख्य खड़े थे तो गुरु द्रोणाचार्य ने वृक्ष पर सामने सबको देखने के लिए कहा था। ये सुनिए, आप सबको ध्यान में है या नहीं है? तो सबका ध्यान कहाँ कहाँ था? किसी का वृक्ष पर, किसी का वृक्ष की टहनी पर, और अर्जुन का ध्यान कहाँ था? अर्जुन का ध्यान कहाँ था? ठीक से गाँव में बैठा है घर। अर्जुन का ध्यान कहाँ था? ठीक बोल रहे थे बच्चों, बोलना चाहिए। ये जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन होती है ना, अपने मन की बात कहने की। अर्जुन का ध्यान कहाँ फोकस था, कंसंट्रेट था? आंख पर, लक्ष्य पर। लक्ष्य क्या था? उस पक्षी की आंख। तो अर्जुन का ध्यान कहाँ था? पक्षी की आंख पर। और पक्षी की आंख पर होने से और सबको गुरु द्रोणाचार्य बिठाते गए कि जब आपका ध्यान फोकस नहीं, लक्ष्य पर नहीं, तो लक्ष्य सही से अचीव किया ही नहीं जा सकता। और अर्जुन का ध्यान लक्ष्य पर था, तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा आप अपना बाण चलाओ। बाण चला और लक्ष्य अचीव हो गया। कैसे? कंसंट्रेशन, फोकस लक्ष्य पे। जब लक्ष्य पर फोकस होते हैं हम, तो निश्चित है लक्ष्य को अचीव किया जा सकता है। और जब लक्ष्य में इधर उधर भागते हैं तो निश्चित है लक्ष्य अचीव ही नहीं हो सकता। तो लक्ष्य पढ़ाई है। जब आप अपने को फोकस करोगे पढ़ाई पर, तो निश्चित है कि आप अच्छे लक्ष्य को अचीव कर सकते। एक बात और, जिन बच्चों की कंसंट्रेशन अच्छी होती है, लक्ष्य पर फोकस रहती है कंसंट्रेशन, उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? कॉन्फिडेंस लेवल। और ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहना चाहिए। हमने प्रैक्टिकली देखा जिन बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे होते हैं वो कुछ भूल भी जाए तो भी लिख के आ जाएंगे एग्जाम में। और जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बिगड़ जाता है, होगा नहीं होगा, ये क्वेश्चन ना आया तो, याद ना रहा तो, मैं लिख तो ना पाया, ये जो कंफ्यूजन आ जाती है कॉन्फिडेंस में, ये कॉन्फिडेंस बिगाड़ती है। तो ऐसे बच्चे जो याद करके, लेसन प्रिपेयर करके, लर्न करके जाते हैं, वो भी वहाँ भूल जाते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं होता। तो जिन बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होगी उनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्फिडेंस जिनके दोनों अच्छे होते हैं उनकी मेमोरी बहुत शार्प होगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना? अच्छी मेमोरी होना आवश्यक है या नहीं है? अच्छी मेमोरी कैसे बनती है? कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस के साथ। ये दो होंगे तो
आपकी मेमोरी निश्चित अच्छी रहेगी। आप जब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देखना, कंसंट्रेशन बना के रखो, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखो, मेमोरी अपने आप अच्छी होगी। और अलर्ट क्या रहना है, जिससे मेरी कंसंट्रेशन बिगड़ती है वहां से मेरे माइंड को अलर्ट रखना है। और अवेयरनेस क्या है, गीता के ज्ञानियों के अनुसार अवेयरनेस क्या है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या करना है क्या नहीं करना, इसमें मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। फ्रेंड सर्कल हमारा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर अगर मित्र कोई ऐसा बन गया जिसका ध्यान अपना ही पढ़ाई में नहीं है, जिसकी अपनी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है, वो हमारी कंसंट्रेशन भी बिगाड़ देगा या नहीं बिगाड़ेगा? बिगाड़ देगा ना। देखो कर्ण जो था बहुत अच्छा था, कर्ण में बहुत गुण थे, लेकिन कर्ण का जीवन एक विलेन की तरह कैसे बन गया, बिगड़ कैसे गया? केवल पूरी संगति के कारण। किसकी संगति के कारण? हाँ, केवल किसकी संगति के कारण? दुर्योधन। हाँ, दुर्योधन बिल्कुल ठीक है। दुर्योधन की संगति ने अच्छे भले कर्ण को भी क्या कर दिया था? बिगाड़ दिया था। तो ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे फ्रेंड सर्कल कैसा बनाना है, जो मुझे बिगाड़ दे वैसा, या जो मुझे और अच्छे मार्ग पर ले जाए। तो देखो एक आपको डेफिनेशन बताते हैं, अभी जो डेफिनेशन जरा सीधा लेते हैं, अभी को एक्टिव अलर्ट 5 मिनट के लिए बस बिल्कुल और एक्टिव अलर्ट। तो बात क्या चल रही थी, किसकी बात चल रही थी? कर्ण और दुर्योधन की बात बताएगी कि संगति कैसे। और एक बात हम आपको डेफिनेशन एक बताने लगे थे कि अच्छा मित्र कौन और शत्रु कौन। जो हमें आज से ध्यान रखें, जो हमें अच्छी पढ़ाई और अच्छे जीवन के लिए इंस्पायर करे, वो हमारा क्या है? मित्र है, वही अच्छा फ्रेंड है। और जो पढ़ाई से दूर करके बुराई की ओर ले जाना चाहे, किसी बैड हैबिट में डालना चाहे, वो मित्र नहीं है, वो क्या है? वो हमारा क्या है? शत्रु है। जीवन में इस बात को याद रखना है, यहाँ भी जब तक आप है तब तक भी और आगे भी कहा जाए कि जो हमें बुराई की ओर ले जाना चाहे, जो हमारे अंदर कोई बैड हैबिट डेवलप करना चाहे, तो वो हमारा क्या है? मित्र या शत्रु? क्या है? शत्रु है। मित्र कौन है? मित्र कौन है हमारा? अच्छी पढ़ाई और अच्छे जीवन के लिए जो इंस्पायर करे, वो क्या है? वो मित्र है हमारा। तो जीवन को जो हमें अच्छाई की ओर ले जाना, और ये 2 शब्द याद रखने हैं, अच्छी पढ़ाई और अच्छा जीवन। क्या होना चाहिए? अच्छी पढ़ाई और पढ़ाई भी अच्छी हो और जीवन भी अच्छा हो। अच्छा जीवन कौन सा होता है? जिसमें आइडियल्स हो, जिसमें मॉरल्स हो, जिसमें कुछ गुड हैबिट्स हो, जिसमें कुछ अच्छी वैल्यूज हो, वो जीवन अच्छा माना जाता है। और जिस जीवन के अंदर कुछ अच्छा करने का संकल्प हो, वही जीवन
अच्छा बन पाता है, अच्छाई की ओर चल पाता है। और अच्छे जीवन के लिए देखना हो तो प्रारंभ से यह ध्यान रखना है कि तो बड़े भाई के बड़ों का आदर करना है। हमारी संस्कृति क्या है? मातृदेवो भव और पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। बहुत सुंदर। यहाँ बच्चे पहले से ही जानते हैं क्या क्या तीन आइडियाज हैं हमारे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और आप देखें भगवान राम का बाल्यकाल जब था अपनी सनातन संस्कृति में, आप देखें कि भगवान की अवतार लेकर आते हैं ना, तो राम रूप में आए या कृष्ण रूप में आए, तो ऐसे आइडियल्स की स्थापना करने के लिए आए। ये सनातन धर्म का गौरव है कि यहाँ परमात्मा भी आते हैं तो इन आदर्शों को स्थापित, ये धर्म संस्थापना क्या है? आदर्शों की स्थापना, वैल्यूज को एस्टैब्लिश करने की बात। और आप देखें छोटी आयु में ही भगवान राम का क्या आदर्श था? ये मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। रघुनाथ क्या करते थे? प्रातः काल उठे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा क्या करते थे? माता पिता और गुरु। ये तीन बातें आ गई ना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। ये तीनों बातें आ गई ना। और तीनों बातें भगवान राम ने अपने जीवन में की। माता पिता गुरु नाम ही माता। इधर वाले बोलो, तीनों शब्दों में इधर वाले बच्चे इधर जो बैठे ऐसे इधर वालों की आवाज कितनी अच्छी है। और आप ऐसे बोल रहे हैं, ठीक से बोलो। अब पिछले वाले बच्चे बोले जो पीछे बैठे हैं और अच्छी आवाज में। पीछे वाले बच्चे बोले तीनों शब्द एक्टिव, ठीक है। तो बात कर रही थी, देखो बड़ों को आदर करने से, बड़ों को प्रणाम करने से उसका परिणाम जो होता है ना, वो आशीर्वाद मिलता है। महाभारत युद्ध में विजय दुर्योधन की हुई थी या पांडवों की? पांडवों की हुई थी। दुर्योधन आदि कौरवों की नहीं। क्यों नहीं हुई थी? दुर्योधन जीवन में कभी भी बड़ों का आशीर्वाद नहीं ले पाया था। कभी भी जो किसी को प्रणाम ही नहीं किया, हर समय ईगो में रहता था, अहंकार में रहता था, किसी का आशीर्वाद नहीं दुर्योधन को मिला था। लेकिन अर्जुन एक ऐसा अवसर आया विराट राजा के यहाँ, जब सामने मुख्य 5 खड़े थे, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण और दुर्योधन, 5 खड़े थे। अर्जुन अज्ञातवास में था, ब्रह्मला के रूप में। दुर्योधन चाहता था पहचान लिए जाए, देवानंद पूरा होने का। और अर्जुन के हाथ में गांडीव था। सामने जब देखा गुरु खड़े हैं और पितामह खड़े हैं, तो आप जानते हैं कि अर्जुन ने पहला बाण चलाया तो क्या किया? महाभारत ग्रंथ में लिखा है
अर्जुन ने जो प्रथम बाण चलाया वो पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों के पास, पैरों के पास चलाया, पैरों के नजदीक जाके। मतलब आप समझ गए, अर्थ समझ गए क्या? क्या अर्थ था इसका? प्रणाम वेदा, युद्ध की भाषा में, वार लैंग्वेज में उन्होंने अपना प्रणाम वेदा महाभारत में लिखा है। अर्जुन ने उस समय ब्रह्मरा के रूप में 2 बाण चलाए। एक बाण तो उनके पैरों के पास गया, युद्ध की भाषा में प्रणाम भेजा, क्योंकि वेश बदला हुआ था ब्रह्मरा अज्ञातवास में। और एक बाण जब चलाया तो उनके कान के पास से निकल गया। तो 13 वर्ष के बाद मिले थे। महाभारत का विराट पर्व जो है ग्रंथ का, ये उसका पहला चैप्टर है। दूसरा बाण कान के पास से निकल गया और उसका अर्थ क्या था? युद्ध की भाषा में अर्जुन ने 13 वर्ष के बाद मिलने पर उनका कुशल क्षेम पूछा। जैसे यहाँ गुजरात में पूछा जाता है ना, कैम छो, ये पूछा जाता है ना। तो ये अर्जुन ने एक बाण के कान के पास चलाकर पूछा, कैम छो, कैसे हुआ, कुशल क्षेम। तो पितामह ने द्रोणाचार्य जी की ओर देखा, ध्यान से सुनिए, और द्रोणाचार्य जी ने पितामह की सहमति से जो पहला बाण चलाया वो अर्जुन के सर के ऊपर से निकल गया। मीनिंग समझ गए या नहीं? समझ गए ना? अर्जुन ने बाण चलाया, युद्ध की भाषा में प्रणाम भेजा पैरों के पास, और गुरु द्रोणाचार्य ने सर के ऊपर से बाण निकाल करके आशीर्वाद भेज दिया, विजयी हुए। अब देखें, विरोध में खड़े हुए गुरु और पितामह से भी आशीर्वाद ले लिया अर्जुन ने। कैसे? उनको प्रणाम करके। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, और आशीर्वाद बड़ों का, गुरुजनों का आशीर्वाद बहुत जीवन में काम करता है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जीवन की आशीर्वाद। ये देते रहना चाहिए बड़ों के सामने, घर में या स्कूल में क्रोध नहीं करना चाहिए। यहाँ के बच्चों को समझ नहीं आता, नहीं आता तो अच्छी बात है, लेकिन क्रोध जो होता है ना वो कंसंट्रेशन भी बिगाड़ता है, कॉन्फिडेंस भी बिगाड़ता है और मेमोरी को भी करता है क्रोध करना। यहाँ आप सब एक अच्छे एजुकेशनल सेंटर में हैं, एक अच्छे शैक्षणिक केंद्र में हैं, जो शिक्षक युवा पटेल समाज के एजुकेशन एंड मेडिकल विंग जो है, मेडिकल सोसाइटी जो है, उसके द्वारा बहुत अद्भुत काम, जैसे हमें आने में पता चला यहाँ, तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत प्रसन्नता हुई। आनंद पहले भी हुआ, भूले अपने सभी बैठे हैं, लेकिन इस बार जब उन्होंने कहा कि भुज का जो प्रवास है वो पहले एक शिक्षा केंद्र से होगा, बच्चों के साथ बात करने में हमारा भी एक स्वभाव रहता है कि बच्चों के साथ कोई बात, बच्चों को कुछ अच्छे संस्कार मिले। बचपन तो फाउंडेशन है ना, पूरे जीवन की फाउंडेशन क्या है?
ये बचपन, और बचपन जो है ये केवल आगे के जीवन की फाउंडेशन नहीं है, ये मजबूत राष्ट्र के लिए फाउंडेशन है। अच्छा बचपन, सुसंस्कारित बचपन, यहाँ इस केंद्र में अच्छा शिक्षा का भाव है ही। हमें लगता है शिक्षा पूर्ण भी तभी होती है जब पुस्तकीय ज्ञान, बुक नॉलेज के साथ कुछ मॉरल नॉलेज दी जाए, कुछ एथिक्स की नॉलेज दी जाए, एथिकल नॉलेज, कुछ आइडियल्स बताए जाएं। और अब तो गुजरात सरकार ने भी भगवद गीता में मॉरल्स इंट्रोड्यूस कर चुकी है सरकार एजुकेशन के साथ भगवद गीता। हरियाणा में भी, यहाँ भी एक साथ हुआ, तो बहुत प्रसन्नता की बात है ये भी। यहाँ भी यहाँ ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अपने वाइस प्रेसिडेंट अपने उपस्थित हैं यहाँ, जो हमारे साथ बैठे थे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ हैं, और भी जो सदस्य यहाँ हैं, उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत ब्लेसिंग, बहुत बहुत शुभकामना, शुभेच्छा इस अच्छे प्रयास के लिए। यहाँ के स्टाफ के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। और यहाँ जो आज से जिन्होंने प्रिंसिपल दायित्व लिया है कोमल बहन कर, तो उनके लिए भी बहुत शुभकामना। बच्चों को अच्छी पढ़ाई और अच्छा जीवन, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से इससे खूब अच्छी प्रेरणा बनेगी, जीवन अच्छा बनेगा, और साथ ही साथ अपनी सनातन परंपराओं को गौरव मिलेगा, साथ ही साथ अपने राष्ट्र का गौरव भी इससे बढ़ेगा। प्रार्थना की 3 बातें सभी बच्चे पीछे पीछे उच्चारण करेंगे, बच्चे भी और सभी बड़े भी। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। भगवान के मंगल में कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। सबके लिए शुभकामना। और यहाँ के ट्रस्ट के लिए शिक्षा और चिकित्सा, एजुकेशन और मेडिकल लाइन में और अच्छे कार्य करने के लिए बहुत बहुत शुभकामना। स्वामी जी एक्टिव अलर्ट અને અવેરનેસ एक्टिव करो सरपटाओ अलर्ट सजाग अवस्था मारे अवेरनेस के जागृत आ वस्तु होय तो आपरा कॉन्फिडेंस लेवल में એનો વધારો થાય એટલે એ વાત કરી અમે જે સાથે સમેટી અને આપણો જે વિદ્યાર્થી છે માધુર્ય એક વ્યક્ત કરી છે હું 2 મિનિટ માટે કહીશ કે માધુર્ય આવ્યો અને તારા જે પિતાજીશ્રીના વાત કરવી છે એના વિશે ઝડપથી આવી જાય કારણ કે એમને એટલું છે સમેટથી આજના રોડાવાળા જીવનમાં લોકો હતાશ થઈ જાય કામ કરે છે એવી જ રીતે ગુજરાત સમય હતાશ થઈ જાય ત્યારે શ્રી કૃષ્ણએ સાચું માર્ગદર્શન કર્યું કે બ્રહ્મણ્ય વિચાર માટે આપ કરે
Hare